Morning students. Our today's topic is tenses. Okay, and tenses is taken from a Latin word tempus, which means time. Okay, so basically before starting with tense part, it is only possible to study tense only when you are quite familiar with the knowledge of a modal structure, vocabulary and different parts of a sentence. और मॉडल का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक सेंटेंस का, वो होता है SVC. इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट. हम पहले भी अपनी क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं इस बारे में, राइट? सो if I give you one example of this, they go to school. राइट? इसमें सब्जेक्ट दे है, वर्ब गो है एंड अदर इज कॉम्प्लीमेंट हियर. ओके, एंड व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ अ एक्शन ऑफ द वर्ब, राइट? एंड इट जनरली noun, pronoun or adjective word act as a subject of a action. जो मोस्टली क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव वर्ड्स को एज एन एक्ट करता है सब्जेक्ट ऑफ ए एक्शन. ओके, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है? एंड इफ आई से ही गोज टू स्कूल, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है एंड यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट? सो इट कैन बी प्लूरल और सिंगुलर. द सब्जेक्ट वर्ड इन अ सेंटेंस can be compared exactly like the head of the family. ठीक है? जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, वो क्या होता है? हेड ऑफ द फैमिली. जिसके बिना कोई भी कार्य संभव ना हो, राइट? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं होगा, देन हाउ कैन अ सेंटेंस मेक अ कंप्लीट सेंस, और हाउ इट कैन बी कंप्लीट? सो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज हेड ऑफ द फैमिली. ओके, सो नेक्स्ट इज वर्ब. नेक्स्ट पार्ट इज वर्ब. सो वर्ब क्या होता है? वर्ड्स यूज्ड फॉर predicating, that is saying something about the person or thing, are called verb. जो वो शब्द जो पर्सन या जो भी थिंग है उसके बारे में, यानी कि जो सब्जेक्ट है हमारा उसके बारे में कुछ कह रहा हो, उसके बारे में बता रहा हो, उसको पॉइंट आउट कर रहा हो, तो वो वर्ब होता है, राइट? और दिस इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट इन अ सेंटेंस. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, एंड देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. ओके, सो वी ऑलरेडी नो देयर आर
4 types or 6 type of verbs like main verb, second is helping or auxiliary, and third one is transitive, and fourth one is intransitive. Fifth one is strong, and sixth one is weak. ओके हम जिन्हें रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स, तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक इज इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, सो मेन वर्ब हम लोगों को पता है व्हाट इज मेन वर्ब. मेन वर्ब वो होते हैं दोज actions word which have both the individual meaning and identify, जिनका एक इंडिविजुअल मीनिंग होता है, जिन्हें किसी भी और वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है टू कंप्लीट देयर मीनिंग, आर मेन वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज नीड अ main verb, like she is reading a book, right? So is here is a helping verb in this sentence, but it needs reading to be called as helping or auxiliary verb, otherwise is a stative verb, right? Next is transitive verb. Transitive verbs are those main verbs which are accompanied with some direct or indirect object, जिन्हें कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, राइट? इफ आई से अ टीचर डिलीवर्स lectures, so in this sentence a teacher or a lecturer delivers classes. Okay, so here the pattern of the sentence is SVO, right? Subject, verb and object. So in this sentence deliver needs classes because it needs object here. If the object is not present here, then a teacher delivers what he delivers, right? So some verbs need an object to complete their meaning. ऐसी verbs क्या कहलाती हैं? Transitive verbs. Intransitive are opposite. They don't need any object to make sense or make a complete sentence, right? If I say Sita laughs, okay, so in this sentence laughs, the verb of the sentence, don't need any object to make a sense. Okay, next is strong verbs. Strong verbs are basically those who
are whose three form are quite different from each other, जिनकी तीनों forms first form of the verb, second form and the third form यानी कि past participle form are different from one another, right? जैसे कि हम simplest ले लेते हैं go, went, gone, write, wrote, written, ठीक है? So these type of words are called strong words, जिसमें सभी जो थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. नेक्स्ट इज वीक. वीक वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which have at least two forms same in the spelling, जिसमें two form of the verbs की जो spelling होती है वो same होती है या तीन भी हो सकते हैं. Okay, like cut, 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 shut, 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 cast, 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 read, 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 wish, wished, wished. Okay, so these are the examples of weak verbs. So this is about the subject and verb part. So now we know there are 6 type of verbs. क्योंकि हमें टेंस शुरू करने से पहले उसका स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इन टेंस when we have to fill verb, the correct form of the verb, then only if we know these kinds we can put a correct form of the verb in a sentence. Okay, verb plays a major role in tenses. Okay, so tense, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेंस मीन्स टाइम, राइट? सो टाइम इज अ यूनिवर्सल थिंग एंड विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, which is divided into 3 parts. Present, past and future. Okay, and in today's class we are going to cover our present tense. Okay, and these 3 types of tenses are also divided into or subdivided into 4 types. ठीक है? So अब हम बात करेंगे इस क्लास में प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिन्हें हमें हर तीनों टेंसेस को सब डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में और 4 टाइप्स में, यू कैन से. फर्स्ट वन इज, लेट मी प्रेजेंट की बात करते हैं आज हम इस क्लास में. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट, which is also known as simple, right? And second is continuous, present continuous. Third one is present perfect. Okay, fourth one is present perfect continuous, right? So these are 4 types of
or subdivided parts of three tenses. So in this class we are going to discuss about present tense. So what is present tense? Present tense is basically a tense in which a verb refers to an action or an event in present time. Present इंडेफिनिट टेंस में जैसा कि हमें पता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट यानी कि जो अभी के जो घटना हो रही है या जो अभी जो एक्शन हो रहा है हमें उसके बारे में बताए. लाइक प्रेजेंट में जो भी चीज हो रही है, लाइक he goes to school. So in this sentence the subject of the verb is going school recently in present time, right? So basically present टेंस को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. सो प्रेजेंट हमें पता है प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब होती है वो रेफर करती है किसी भी इवेंट या एक्शन को इन प्रेजेंट टाइम, राइट? सो लेट्स डिस्कस इट्स फर्स्ट टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट वर्ड से ही हमें समझ में आता है कि कोई भी काम ना तो पूरा हुआ है ना या अधूरा है. मतलब किसी भी बात की श्योरिटी नहीं है कि वर्क इज डन एंड वर्क इज इन प्रोसेस. सो बेसिकली दैट इज व्हाई प्रेजेंट इंडेफिनिट. इंडेफिनिट मतलब जिसके बारे में कुछ भी निश्चित ना हो, राइट? सो इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं. सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वी यूज दिस टेंस टू द थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू. ठीक है, इसके कुछ चीज़ें हैं जो हमें जिस समय पे हम यूज़ करते हैं. एक तो हम इसे यूज़ करते हैं थिंग्स दैट वी आर ऑलवेज ट्रू, जब कोई हर बात हमेशा सत्य होती है. इन किसी भी बात के ट्रू होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है. ओके, and situation that exist now and will go on indefinite for general time. जब जो सिचुएशन है वो एग्जिस्ट करती है अभी और वो जाएगी एक अनिश्चित समय तक. आई डोंट नो कि वो कितना टाइम टेकिंग है, राइट? एंड हैबिचुअल थिंग्स के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है. द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं. ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है. लाइक फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और यू कैन से पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंसेस. ओके, एंड सेकेंड इज अफर्मेटिव में आ जाता है हमारा नेगेटिव. ओके, जिन्हें हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव. आप इसे अफर्मेटिव, पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव नेगेटिव को हम खाली नेगेटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव.
interrogative, and last one is interrogative negative, right? So basically यहाँ पे हम सबसे पहले टेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर इन्हें सब डिवाइड किया गया 4 कैटेगरीज में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एवरी 3 part of the sentence are subdivided into 4 categories, right? And then these 4 categories are divided into 3 types: affirmative, positive, negative sentences, and interrogative. And you can add one more, interrogative negative. Okay, so let's discuss about present indefinite affirmative sentences. So present indefinite का जो first part है, that is affirmative, यानी कि पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसका जो रूल होता है या पैटर्न ऑफ द सेंटेंस जो होता है हमारा, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस एस या ईएस and other part of the sentence, or you can say object, right? So if I give you some examples here, so Sita sings a song. Okay, so you can see the pattern of the sentence here: subject, verb की first form plus es and ses and object or other part of the sentence. Okay, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, you write a letter. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर के साथ हमेशा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस या ईएस लगेगा एंड प्लूरल के साथ एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगेगा. ओके, सो दिस इज द पैटर्न ऑफ द सेंटेंस इन affirmative positive sentences of present indefinite tense. Okay, so next is negative sentences, right? Negative sentences. So negative sentences में हमेशा जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा: सब्जेक्ट प्लस do or does plus not plus verb की first form, then other part of the sentence, or you can say object of the sentence. So basically जो हमारे ही शी इट होते हैं, यानी कि सिंगुलर पर्सन ऑफ द सेंटेंस के साथ हमेशा डज आता है. ठीक है, ही शी इट यानी कि सिंगुलर के साथ हमेशा डज आता है, एंड यू वी दे जो कि हमारे प्लूरल पर्सन हैं उनके साथ डू आता है. ओके, सो
here look some examples. Okay, हम इन्हीं को कन्वर्ट करते हैं इन नेगेटिव सेंटेंस. ओके, सीता इज what? Shita is a singular person, right? And Shita does. अब does आ गया है तो हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा रहे थे अब हम वो नहीं लगाएंगे, राइट? Shita does not sing a song, right? So this is the negative फॉर्म ऑफ द सेंटेंस. जब हम सिंगुलर पर्सन के साथ डज लगा देंगे नेगेटिव सेंटेंस में तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS नहीं लगाएंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू. ये यू जो है हमारा क्या है? प्लूरल है, प्लूरल पर्सन है, राइट? सो यू डू नॉट write a letter. So this is very simple, that positive form and negative form of the sentences. Next is interrogative. Interrogative are those who ask questions, right? Interrogative sentences के बारे में जब हम sentences पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है विच आस्क क्वेश्चंस, राइट? वो होते हैं इंटेरोगेटिव. अब इंटेरोगेटिव को हम दो टाइप से करते हैं, ठीक है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पहला तो हम जो क्वेश्चन मेकिंग करते हैं वो करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब से. डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर remaining part of the sentence, and most importantly this question mark. Never forget to put this question mark in interrogative sentences. Okay, next is WH question words. Okay, WH question words. Okay, जब interrogative में हम सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे या तो हम वो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब से क्रिएट करेंगे या फिर हम WH वर्ड से क्रिएट करेंगे. ओके, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड लास्टली but most important question mark. Okay, so let's see some example here. अब हमने बनाया था सीता sings a song, right? So उसका जब हमने नेगेटिव बनाया तो क्या बना हमारा? सीता does not sing a song. तो अब हम उसे does से बना के देखते हैं. does सीता यानी कि सब्जेक्ट सिंग अ सॉन्ग. सो हमने एक ही सेंटेंस से नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव भी क्रिएट कर दिया, राइट? ये था हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट वाला सेंटेंस. नाउ डू यू राइट अ लेटर, राइट? सो हमने यू राइट अ लेटर से बनाया नेगेटिव. यू डोंट राइट अ लेटर, एंड नाउ वी क्रिएट इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद इट. डू यू राइट अ लेटर, एंड लास्टली द क्वेश्चन मार्क. ओके, अब अगर हमें WH वर्ड से सेंटेंस बनाने हैं तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले WH, राइट? What or when, why,
वॉट से बनाते हैं हम, सीता वाले से ही. वॉट, देन डू या डज. वॉट डज सीता सिंग. ठीक है, तो ये अब हमारा बन गया सेम सेंटेंस से WH वर्ड सेंटेंस. WH वर्ड में हमेशा जो हमारा आंसर होगा, यानी कि व्हाट शी सिंग्स, व्हाट डज सीता सिंग, राइट. सो इसमें हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा आंसर होगा ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हमारा आंसर निकले, हमें उस WH वर्ड से अपना सेंटेंस क्रिएट करना होगा. अगर मैं कहूँ सीता गोज टू स्कूल, ओके. सो इन दिस सेंटेंस we had to create with WH word, then the sentence. so यहाँ पे जाने की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है. so it is very understood that we have to create a sentence with where. Where does Sita go, right. so हमारा आंसर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट स्कूल, सीता गोज टू स्कूल. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अगर अभी हमें इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी